talk about breast cancer because they always used to say that you have healed, so move on. So I was like, yes, I've healed, but I can't forget something, such a profound experience that has happened with me. And also the idea that, then I realized everyone used to ask me, oh, are you out of it? No one was using these two words, breast and cancer. So I realized that, there's a lot of shame around this subject, because it's a sexual organ, so people don't want to talk about it. My idea was the thing that, if there are so many women who are ashamed of their own bodies or they feel कि हमें शर्म आती है, how will they ever go to a doctor? How will they ever say कि मुझे problem है, check करो? And the sooner you go to the doctor, the sooner the idea is to, get the treatment at the right time. That's the only way for now to get detected and get treated and come out of it fast without getting into complications. So the longevity is high. आपकी लाइफ बढ़ जाएगी अगर आप डॉक्टर के पास सही टाइम पे जाएंगे. तो एक तो मेरा मुद्दा ये था, तो मुझे लगा कि देखो मेरा तो ट्रीटमेंट हो गया है, तो भी मुझे बोला जा रहा है कि बात मत करो. तो जो लोग डिटेक्ट होते हैं या नहीं भी डिटेक्ट होते, तो उनका क्या होता होगा? उनको कितना शर्म है कि हमको कुछ हुआ है, तो हम किससे बात करें? क्या हम डॉक्टर से बात करें? क्या घर में किसी बेटे से, हस्बैंड से, किससे बात करें? तो मुझे इसीलिए फिल्म बनानी थी इसको बोलने के लिए, क्योंकि मैं ब्रेस्ट कैंसर, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं फिल्म मेकर हूँ. और कैंसर अब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री को मैं डिफीट नहीं कर सकती. मैं उतना ही डिफीट कर सकती हूँ जितना मैं आपको फिल्म के माध्यम से बता सकती हूँ. बट इतनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पहले मैंने सोचा था फिल्म बनाऊंगी कि कैंसर होता क्यों है. फिर उस पर मुझे समझ में आया कि देयर आर लाइक 1 लाख फैक्टर्स. मतलब एक डीएनए चेंज होता है और यू कैन गेट कैंसर. 1 डीएनए. एंड वी आर लाइक, cities are like the hubs of cancer, the bleeding hubs of cancer. 2030, like sadly enough, we are going to be the cancer capital of the world. So what are we doing? Tata Cancer, like people don't know because हम लोग अपनी दुनिया में रहते हैं. But Tata Cancer has opened up hospitals in smaller towns, संगरूर में, बनारस में, लखनऊ में, so that people don't come to Bombay and other big cities for treatment. So that is what is happening. But then the idea कि ठीक है, the health angle is another one, the pollution angle is different. But what happens if you get detected of cancer in any way? I mean, just because of the fact that the stigma is so high, so then how will you ever say any man who's of the age of 70 is of very high risk of prostate cancer? It's very sad, but that is true. Like, any small, big cities, anywhere. So this is the kind of environment that we are living in, and this is what we've inherited. This is what we are, like we are silent about. So that is what the idea was, to the first idea of stigma and shame around cancer. Like, I just wanted to demystify it in a very storytelling way and bring this thing to light without saying much. So yeah, so that is what it was. So please आप थोड़ा मुझसे सवाल करेंगे तो मैं फिर शायद आपको और बता पाऊँ अच्छे से. पूरा शादी किससे की? Exactly. Are you serious? नहीं, मैं मुझे लग रहा था कि शायद मेरे मम्मी पापा की जनरेशन में शेम है ना इसको लेकर. फिर मुझे लगा नहीं, मेरे मम्मी पापा तो एक बहुत बड़ी जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक दे आर नॉट ओनली माई पेरेंट्स, दे आर द पेरेंट्स ऑफ एवरीवन, ऑल ऑफ अस, राइट? Then I realized, okay, I wanted to know what do men think about it, and I was already thinking कि अच्छा चलो, let me find man that place. So I thought, let me just see what do people say when I tell them that I'm a breast cancer survivor. So the idea was to film the first meeting with them on camera and not tell them that I'm a cancer survivor. So I never used to tell them Tina, but it was so different alias name and profile. And then of course I told them I'm making a film on love and marriage and everything. Can I bring the camera? They said yes, very good. Like, some had problems, some did not. So there were 6-7 people that I filmed. But then the idea was also again to be very honest and really like the people that I'm bringing on board. Like, जिनसे बात करने में मुझे मजा आए, तो they are the people who stayed in the film. So then, of course, like, the last person got married, the Saurabh जिसे ना, तो मैंने उसको बोला come for the film screening.
बट ही वाज अ वेरी, फिर मैंने कहा ठीक है सोच लो, मुझे पता नहीं, बिकॉज यू नो रिसेंटली गॉट मैरिड, मतलब वाइफ को कुछ वो इनसिक्योर हो गई तो प्रॉब्लम हो गई तो फिर इसके लिए, बट हाँ You, you mean the meeting of the men was a device? It wasn't, you weren't actually interested in no marrying them? no it's actual, I'm looking for but the problem is that you know dating is अपने आप में बहुत it's a very complex medium, and the you know, so like the second person whom I met in Delhi, he said, do you know how to cook? I was so upset. I was like, you know, because this entire politics of food comes into picture, that I know how to cook, but do you know how to cook? क्योंकि मतलब खाना ना हमारी मतलब दुनिया में ना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। हम न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम देते भाई हाँ लड़की है तो खाना बनाना आना चाहिए, बंदा है उसको मैगी बनाना आता है वो चलेगा बट विमेन इज लाइक तो विमेन के ऊपर सारा डाला जाता है। तो कहीं ना कहीं ग्रोइंग अप मुझे भी ये रिबेल था कि मैं खाना थोड़ा बनाऊंगी वैसा, बट देन आई रियलाइज कि नहीं नहीं ये कुछ गलत है, मैं कुछ और चीज के अगेंस्ट रिबेल कर रही हूँ। वो मुद्दा अलग है कि मैन वुमेन वाला, बट फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लेकिन हमें दो चीजों के बारे में नहीं पता, हमें सब चीजों के बारे में पता है, हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जिस बॉडी में रह रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता, हॉर्मोन्स के बारे में कुछ नहीं पता, जो खाना खा रहे हैं कुछ नहीं पता, योगा एक्सरसाइज कुछ नहीं पता, क्या करना है, कितने पैसे कमाने, कहाँ करना है, शादी जाके हाँ सब पता है, हाँ वो ढूंढो ढूंढो क्योंकि ये सेट पैटर्न है, ये करो, बट जिसमें आप रह रहे हो उसके बारे में तो जानो, उसको कैसे नहीं, जब तक जानोगे तो क्या होगा, मतलब दिस इज लाइफ दैट यू आर लीडिंग, दैट्स व्हाई वी हैव सो मच ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस, डायबिटीज, हार्ट अटैक्स, कैंसर, you know, so because culturally we are totally, you know, कि आप किसी की धरोहर हो, आप किसी की बेटी हो, शान हो, आन हो, घूंघट में रहो, समझ लो, मतलब आप सब कुछ हो, लेकिन आप जो हो ना आपको भी नहीं पता आप कौन हो, ये बॉडी किसके लिए नहीं पता है, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसको छुपा के रखना है, बात नहीं करनी, इसके बारे में जानना नहीं है, कितने हॉर्मोन्स होते हैं, कितना आपको एक टाइम के बाद आपको हार्ट के लिए अगर आपको आइडेंटिफाई करना है आपको कितने टेस्ट करने हैं, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी एक चीज़ होती है जो टाटा कैंसर वैली में फ्री टेस्ट होता है, उनका पूरा डिपार्टमेंट खाली पड़ा रहता है। जो मेरा जब ट्रीटमेंट हुआ था तो मैंने पापा को बहुत बोला कि प्लीज़ जाकर दिखाओ वहाँ पर कि कहीं ये जीन में तो नहीं है, और मैं ब्राका टेस्ट तो मेरा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था तो मैंने ब्राका टेस्ट नहीं कराया, मम्मी तो नहीं गई, फिर पापा गए थे और पापा से 2 घंटे में हो गया, उनका कैसे, बोला पूरा खाली पड़ा था, वहाँ पे कोई था ही नहीं। तो मतलब ये थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा नहीं तो बहुत ज़्यादा है कि बहुत अर्ली एज पे अपनी बॉडी के बारे में कॉन्शियसनेस, फूड, ये सब बेसिक्स हैं, बहुत बेसिक्स हैं, लेकिन हमारा इनके ऊपर ना ध्यान बहुत कम है। इन्वायरमेंट है ना, हमारा नेचर के साथ जो रिश्ता है, और कहीं ना कहीं जब ये बिल्कुल सच है कि जब मैं कला के पास पहुंची थी तो मैं जब वो हीलिंग कर रही थी ना तो सच में बहुत पेन हुआ था। शी सेड सेल्फ लव, मैंने कहा ये क्या होता है, फिर मुझे लग रहा था कि आजकल बहुत सब लोग बात कर रहे हैं नेट के ऊपर सेल्फ लव, तो कुछ तो होगा, बट देन लिटरली आई फाउंड कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग व्हिच आई हैव डन, एंड मैंने हमेशा ये सोचा कि मेरी फिल्में ही मेरा सबसे बड़ा, मेरे लिए सब कुछ है, कभी मैंने वो सेपरेशन नहीं सोचा। फिर जब रियलाइज हुआ देन इट वाज लाइक अ शॉक कि अच्छा दिस इज व्हाट सेल्फ लव इज, यू नो, कि सबसे पहले मुझे अपना ध्यान रखना है और अपनी बॉडी का और इमोशंस का ध्यान रखना है, उसको सप्रेस नहीं करना, मतलब इतनी बड़ी बात है कि सिंपल बात है कि बात करनी है। मैंने अपनी मम्मी को जिंदगी भर चुप होते हुए देखा है, कभी अपनी बात असर्टिवली पॉजिटिवली रखते हुए नहीं देखा, और मुझे कितने टाइम तक लगता था कि यही होता है, यही सही है, बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज शी वॉज यूज्ड टू से कि नहीं बोलना है, नहीं बात करनी है, धीरे बात करो, मत बात करो, यही बोला जाता है, यही सच है। ये नहीं है सच, बिल्कुल सच नहीं है, ये गलत है। आप सबसे पहले अपने आप के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो जब ये कर रहे हो कि बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, आपके अंदर क्या चल रहा है, दैट्स द वर्स्ट दैट यू कैन डू। एंड यू नो, कैंसर की जो से स्टेजेस डिफाइन करते हैं, तो कैंसर कितना मतलब 5 साल 10 साल लगते हैं उसको किसी भी मतलब फर्स्ट टाइम मैनिफेस्ट होने में। तो अगर आप उस टाइम पे भी अगर मतलब आप सोचो कि एक प्रोसेस है, कैंसर ओवरनाइट नहीं होता, उसको भी बहुत टाइम लगता है, कोई भी डिजीज।
तो इसीलिए जो है ना कि अवेयर रखना अपनी बॉडी और इमोशंस के बारे में, that's so important because that is what you live and that's how you know the life will go on for you and for everyone around you. So these were my learnings and I just wish I can, you know, but these are things which are very like embedded in the film. बहुत मतलब बहुत openly मैंने इसके बारे में बात नहीं की, ये कहीं ना कहीं layers में है, and I hope you can get that कि ये सब बातें हैं इसके लिए. जहाँ पर नाटक कर रहे थे हाँ. उस जगह का कुछ एक्सपीरियंस हमारा तो एक ना थिएटर होता है, थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड, वो पालमपुर में होता है. तो मुझे ऐसे लगता था कि देखो मैं तो फिर भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं फिल्में बनाती हूँ, मैं बना चुकी हूँ, तो मेरे पास एक एजेंसी है बात करने की, फिर भी मुझे मतलब एक सप्रेशन फील होता है. तो उनका क्या होता होगा, बहुत सारे लोगों का मतलब मैन वेमेन जो बोल नहीं पाते अपने सर्कमस्टांसेस में और जिनको वो है नहीं. तो मैं मतलब आई जस्ट हैड अ वेरी ओपन माइंड एंड मैं फिर संभावना इंस्टीट्यूट पालमपुर गई और मैं उनसे परमिशन लिया. शूट तो हमने बहुत कुछ किया था लेकिन उनके खुद के बहुत सारे पैरामीटर्स थे, तो एंड में हमने मतलब जो मुद्दे की बात थी फिर वो भी इतना ही रखा. तो वो था कि कोई ना कोई होगा, ऐसा पक्का होगा कोई ना कोई जिसको दवाई नहीं मिलती होगी, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कह के लोग दबा देते हैं. और मुझे कई लोगों ने बाद में बताया भी कि ऐसा होता है, दैट यू नो मतलब बहुत सारे पढ़े लिखे घरों में होता है, ऐसा नहीं कि एक गरीब तबके में होता है. मैन अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं कि उसको ट्रीटमेंट हो रहा है कैंसर का, तो उनको शेम है या उनको दूसरी शादी करनी है, उनको नहीं समझ में आता क्या करना है क्या नहीं. तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि एक स्किट के रूप में ऐसे उन्होंने बोला करने के लिए, तो आई वाज वेरी हैप्पी. सबने बहुत सहयोग दिया और हुआ ये फिल्म है. मतलब एक्चुअली बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में भी फिल्म गई है, अभी IDSF के केरला में भी गई थी. और आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल. जय चंदीराम फेलोशिप IAWRT, तो जब मुझे जय चंदीराम फेलोशिप मिली तो वो जय चंदीराम एक फिल्म मेकर हैं, आप जानते होंगे उनको शायद. तो मुझे नहीं पता था जब उनका अवार्ड जो मुझे मिला फेलोशिप का, तो फिर मैंने ढूंढा कि ये कौन थी जिनके नाम पे मुझे फेलोशिप अवार्ड मिला. तब मेरी रिसर्च में आया कि वो भी कैंसर से ही गुजरी थी और उनके नाम पे एक अवार्ड था जो मुझे मिला. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि कोइंसिडेंस बना. फिर मैंने उनका पिक्चर ढूंढा कहीं से एंड फिर मैंने कहा आई जस्ट वांट टू रिमेंबर दैट यू नो दिस डे. एंड पता नहीं कितने मतलब कोविड के टाइम पे एटलीस्ट 6 to 7 विमेन जिनको मैं जानती थी वो गुजर गई. तो मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था. और फिर मुझे लगा कि इतना इंटीमेट सब्जेक्ट के बारे में मैं किसी से कैसे पूछूंगी या यू नो, तो इसीलिए मुझे लगा कहीं ना कहीं कि कैमरा को टर्न करते हैं एंड अपने लाइफ के बारे में बात करते हैं. Tina, at what age you got cancer? अरे बाप रे. No, this is a related question. Sequence of questions are मेरे पास. हाँ. At what age you got the cancer? 35. And before that, what kind of person you were? Yes, it is a very relevant question. सो आई डोंट नो, मैं उससे पहले भी काफ़ी अवेयर थी अपनी बॉडी के बारे में, बट हाँ मतलब आई थिंक मेरी प्रायोरिटी हमेशा मेरा वर्क रहा है, एटलीस्ट उस टाइम तक तो है. अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब मैं इतनी कॉन्शियस हो गई हूँ, लेकिन उस टाइम तक तो चाहे मैं योगा भी करी थी, एक्सरसाइज भी करी थी, बट पहला प्यार सब कुछ सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी वाज वर्क. See, now you know that where the shoe pinches because you have undergone a lot of things, a lot of pain, and so many of us here we are not. I mean, we don't know what is happening in our body, right? That's what you're saying, huh? So ये क्या होता है जब तक हम कुछ सफर नहीं करते हैं ना, हमें रियलाइज नहीं होता है that कि ये चीज important है, right? Now you understand that it is very important to be aware of our body. So that is the answer I am giving to your question कि हम क्यों अपनी बॉडी को समझ नहीं पाते. It is जब तक हम कुछ सफर नहीं करते तब तक हम अपनी बॉडी को. तो आप सफर मत करो ना. Yes, that is what. इसीलिए तो कह रही, इसलिए तो I am with you. I am with you. I am with you in मैं this तो regard. चाहती हूँ कि Yes. एजुकेशन रिफॉर्म्स करें. Yes. और बहुत बच्चों को मतलब ना प्राइमरी स्कूल से बच्चों को नेचर के साथ जुड़ना, योगा
डेवलपमेंट का सही मकसद, डेवलपमेंट की सही डेवलपमेंट वो नहीं होती कि पेड़ काट दिए और Yes. बनाते गए, दैट्स नॉट डेवलपमेंट, है ना। तो अपना बॉडी, न्यूट्रिशन, योगा एंड प्रकृति के साथ जो कनेक्शन है, वो जो चीज़ें हैं ना, ये 4 मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है समझना किसी को, दैट्स बेसिक मुझे लगता है, और वही करना आजकल जो जरूरी youngsters है। के साथ हो रहा है, I'm bringing it to point. The type of food they are having, like my own kid is here, he's quite conscious about it. But you know, आजकल जो generations, आप सबने देखा होगा, जो बच्चे खाना क्या खा रहे हैं, बच्चे रह कैसे रहे हैं, what kind of environment they are living in. They are not living a hygienic life. क्योंकि they don't have time. It's so much a pressure of work. There are lots of factors. There are thousands of factors regarding this. So awareness है भी, but they are not utilizing it. They are not still understanding the importance of all these things. So that is what my point was to bringing it out, कि हम सबको अपने बच्चों को अवेयर करना है इसके रिगार्डिंगली। that's what my point is. Actually, I was stunned, बोल नहीं पाए कोई भी। हमेशा ही ऐसा होता है कि शुरू में जब कोई जिया खड़ा हो जाता है ना, तो 5 मिनट तक तो आवाज ही नहीं निकलती कि जो देखा होता है। And congratulations, such a wonderful and very meaningful movies you made, and such light-hearted way, in such serious topic. Congratulations, and I am also a Sikh, and I can see how the mother speaks. What is her reaction to the? That is funny also and true also, and you know what are her concerns, and the father, you know, always impressing कि यार ये कुछ नहीं मुंडा है तो हंसते रहे. But this is how the old generation thinks, and you know, and I really like the boys you were talking. So congratulations, wonderful. I really enjoyed it. Only one small question. I was only always thinking यार ये कैमरा में लड़के ठीक बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, कैमरा देख के ही बोल रहे हैं. हाल तो आपने एक जगह कहा यार ये बोलने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में मुझे लगा ये तो हॉरिबल क्रीचर है. So I just want to really know and get your experience how true they were, how much. देखो क्या होता है ना, अभी इतना बड़ा सवाल आप किससे कैमरे पे फर्स्ट टाइम पूछोगे Suddenly. तो कोई नहीं बोलेगा, मतलब वो बहुत, मेरे को ये थोड़ा बोलेगा नहीं नहीं मुझे बहुत प्रॉब्लम है मैं जा रहा हूँ उठ के। क्यों किसी को बुरा नहीं लगना ना, जो कोई नहीं चाहता बुरा लगे, और कोई मतलब मुझे खुशी होती कोई कहता कि मैं सोच के बताऊंगा, वो भी नहीं था, वो भी किसी ने नहीं बोला कि हाँ मैं इसके ऊपर गौर करूंगा या सोचूंगा, है ना। बट ठीक है, मतलब मुझे लगता है मतलब कैमरा, देखो कैमरा कहीं भी रख दो ना, उसके लिए लोग सब अच्छा ही लगना चाहते हैं, और उसका इफेक्ट होता ही होता है, उसको नहीं निकाला जा सकता, वो बहुत ही मुश्किल होता है उसको निकालना, फिर वो सच्चाई तक पर फिर बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम किसी के घर की भी सच्चाई नहीं जानते, उनकी भी नहीं जानते, तो वो तो फिर मुझे लगता है कि ऑडियंस के ऊपर छोड़ना ही बेटर है कि मतलब मुझे लगता है सारे ही झूठ बोल रहे थे. One question, I'm very curious. Are any one of those three still in touch with you? टच मतलब मैं उनको बता देती हूँ कि फिल्म स्क्रीनिंग हो नहीं, रही ऐसे है नहीं. या उस तरह For से। the purpose it meant. नो नो नॉट Okay, so they were just doing it for the camera. नहीं नहीं Probably. I had a question regarding हाँ, the please. nature thing, that nature has also played an important role in your film. So, did you plan it accordingly, or how much you thought and how much you create? नहीं, it was not at all planned. Like मेरा ना बॉम्बे को सहन करने का ड्यूरेशन है 3 महीने, बस 3 महीने के बाद मुझे जाना ही जाना है बाहर। अब वो धीरे धीरे और कम होता जा रहा है, 2 महीने में होता जा रहा है। तो ये सेकेंड लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, और सब लोग अंदर थे और मैं कैमरा लेके निकल गई। तो मैंने सोचा ये था कि मैं फार्मर्स प्रोटेस्ट शूट करूँगी, मैं वहीं पे गई थी एक्चुअली शूट करने के लिए। फिर मुझे पता चला निष्ठा फिल्म बना रही है, फिर मैंने कहा ठीक है मैं नहीं करती, और फिर मुझे घर भी जाना था, तो मम्मी पापा ने बोला कि तुम मत जाओ क्योंकि कोविड है और ऐसे सब। फिर देन आई रियलाइज कि मैं अगर मुझे पेरेंट्स के साथ रहना है तो मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं उत्तराखंड जाती हूँ। तो मेरे पास कैमरा था तो मैं वो लेके सियारी चली गई, और फिर मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था एक्चुअली, मतलब ना ऐसा कोई थॉट नहीं था, बट ये था कि मैं हर जगह खड़े होके ना मैं खुद ही अपना फिल्मिंग करती जा रही थी ऐसा। फिर बाद में हम लोगों ने जब बात की, जब लैब में गई उस तरह से, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं सोच रही थी कौन है फिल्म का सब्जेक्ट, कौन है तो ना मतलब मुझे इतनी हैरान की हुई जब सब लोगों ने बोला कि यू आर द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म। क्या है,
मैं ही हूँ, अच्छा मुझे नहीं पता था कि मैं हूँ, बिकॉज यू नो लाइक हम जब फिल्म बनाते हैं ना तो कोई कैरेक्टर होता है, हम किसी को फॉलो करते हैं टेक्निकली वैसा। तो व्हेन आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज कि अच्छा वो आई एम देन फिर आई हैव टू फाइंड सम फुटेज फॉर माई सेल्फ या कैसे। तो ये रशेस ऑलरेडी थे, फिर हमने इसके साथ बैठे काम किया, तो वैसा सब था। फिर वो एक बहुत सबसे बड़ी मुश्किल होती है, रियली आई एम टेलिंग यू, कोई ये दिखता नहीं है लेकिन अपने ऊपर फिल्म बनाना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आपको एक टाइम पे ड्रोन बनना पड़ता है, वो ड्रोन कैमरा होता है ना, वो बनना पड़ता है, एक टाइम पे आपको नीचे आना पड़ता है। तो वो एक बहुत मतलब इट्स लाइक अ मेडिटेशन, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं कोई देवी नहीं हूँ कि मतलब मैं जस्ट बिकॉज मैंने ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइव किया है, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं अपने आप को बहुत अच्छी लाइट में दिखाऊं। तो इसलिए मैं चाहती कि मैं अपने फ्लॉज भी दिखाऊं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ जैसे हम फिल्म में दिखाते हैं। तो लेकिन वो जो सेपरेशन है ना, वो सबसे डिफिकल्ट था कि आप अपने आप को उस तरह से करो। बट थैंकफुली आई थिंक बहुत मतलब कुछ मेंटर्स भी थे इसके ऊपर, ढाका डॉक लैब से और डॉकेज कोलकाता से, तो उन्होंने भी थोड़ी हेल्प की मुझे स्टोरी को यू नो डेवलप करने में, एंड दैट वाज वेरी वेरी यूजफुल एक्चुअली। जागरूकता लेके बहुत अच्छा प्रयास लगा हमें, और बहुत अच्छा ये आपका कॉन्सेप्ट है, और हम चाहेंगे कि सारी दुनिया इसको देखे। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मेरा एक सवाल है, हमने इसमें लगभग 8-10 किरदार देखे हैं और सभी पॉजिटिव भी लगे, उनके वक्तव्य भी अच्छे लगे। तो क्या ये स्क्रिप्टेड था या उनके खुद के ही जो आपने कैमरा लगाया वैसे नहीं कहते? थोड़ा मुझे कुछ भी बताएं। स्क्रिप्टेड नहीं था, कुछ भी नहीं था। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, 100%। तो आप हमारे लिए एक हीरो हो, और आपसे भी बड़े हमें हीरो लगे आपके फादर जी, जिनका संदेश बहुत बड़ा था कि स्माइल और मुस्कुराहट सबसे बड़ी औषधि है। शायद आप लोगों को चीज समझ में आ गया होगा, यही उनका कहने का यही मतलब। तो फादर जी को हमारा नमस्कार, और आप बधाई के पात्र हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वॉइस ओवर में फिल्टर कौन सा है? हाँ जो वॉइस ओवर है तुम्हारा, उसमें फिल्टर कौन सा है? फिल्टर है? नहीं नहीं, अभी बोल रही अच्छा वो अब मुझे पता नहीं, साउंड वाले ने डाला हो तो मुझे नहीं पता, और फिर तो ऐसे वाला। हाँ ठीक है, I please, have a lot of questions. हाँ प्लीज बताइए। लास्ट मंथ के स्क्रीनिंग में ही आपसे मुलाकात हुई थी मेरी, तो मैंने सोचा था ये मैं ज़रूर देखूंगा। तो मेरा क्वेश्चन लोगों ने अलग अलग तरीके से पूछा है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने क्या सच में डेट किया है, या फिर मतलब आपने कुछ अरे नहीं, मैं किया है। so that's the now the next question is like you have shown 3 men. हाँ मुझे लगता है वो कौन से शहर से है जो अच्छा। ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब हाँ तो ऐसे देखो- मेन कहाँ मिलते हैं? हाँ नहीं ऐसा नहीं है वो, क्योंकि ना हम बॉम्बे में बहुत इवॉल्व लोग हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे सनी है, उनको मैं अजमेर में मिली थी, जो फर्स्ट जो ब्लू वाले थे, ठीक है। अब मैंने उनको थोड़ी ना कुछ सिर्फ थी कि आप ऐसा बोलो, ही वॉज जस्ट ऑन, तो मतलब वैसा था। और दूसरा अभिषेक वो दिल्ली से है, और जो लास्ट थे सौरभ वो बॉम्बे से है। एंड ऑल्सो सी आई टेल यू वन थिंग कि ना मतलब हम सब एक किसी ना किसी के लिए कैरेक्टर हैं, यू अंडरस्टैंड। मैं भी किसी के लिए कैरेक्टर हूँ, आप किसी के लिए, सबके लिए हम अलग अलग हैं, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व अलग है, हमारी सोच अलग है। और मुझे लगता है ठीक है, मतलब यू नो द पॉइंट इज कि हाउ मच वी कैन टॉलरेट ईच अदर, क्योंकि आज के टाइम में ना इनटॉलरेंस बहुत बढ़ गई है। अगर हम एक दूसरे की बात नहीं मानते, या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेम नहीं है, या फिर मतलब यू नो कुछ भी डिफरेंसेस होते हैं, छोटे छोटे डिफरेंसेस पे भी, तो लोग बस ऐसा सोचते हैं कि तुम मेरे दुश्मन और ब्लॉक गोस्ट यू नो। एंड मतलब बहुत मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आई कांट डू दैट, लाइक आई जस्ट कांट डू दैट। तो सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। डेटिंग तो अपने आप में मुझे लगता है अपनी एक अलग ही कहानी है, क्योंकि किसी को ये नहीं लगता कि कोई हमें रिकॉर्ड कर रहा है, या फिर कोई एक जवाबदारी है, जहाँ जैसे ये ना कैमरा पे एक जवाबदारी है, तो जब जवाबदारी तो सबको अच्छा लगना है, कोई गलत चीज़ नहीं बोलता एक दूसरे को।
लेकिन जहाँ जवाबदारी नहीं होती ना वहाँ फिर लोग कुछ भी बोल के कैसा भी बिहेव करता है. So my question is like, I think